start with the same expenditure method. आज again मैं आपको कुछ numerical question करवाऊंगी, but the numerical में having a different names of those 4 components. तो उन 4 components के different names हैं या different patterns हैं, but remain the same. You just need to add those 4 components to get GDP at MP by expenditure method. And with the help of GDP at MP, you are able to find out national income, which is NNP at FC. So I'm continue with the same. In your book, Sandeep Garg, we are doing example number 60. So मैं आपको कुछ questions भी बताऊंगी. You have to do it at your home. तो वो certain questions you have to do it along with this question. 60 question number. In this question you need to calculate national income. आपको calculate करना है. Calculate national income by expenditure method. Right? इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है. अगेन आई एम सेइंग, चाहे वो गिवन हो या ना हो कि जीडीपी एट एमपी आपको कैलकुलेट करना है या नहीं करना, बट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, राइट? सो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. तो उसके लिए सर्टेन आइटम्स हैज बीन गिवन और कंपोनेंट्स हैज बीन गिवन. First is given private final consumption expenditure. I'm not writing all the components because in this question you need to find out the national income with the help of 2 methods. But मैंने आपको we have already discussed only one method, which is expenditure method. So I'm just including those components which are referred or required for expenditure method, right? So in this question, अगर मैं देखूं, simply I am just going with the answer solution and I am dictating all the components. In this question, expenditure method है, yes. Then what we have to find out? GDP at MP, right? In this question, first component is given private final consumption expenditure. क्या include होता है? Yes, include होता है private final consumption expenditure, right? Next है आपका compensation of employees, not included. Operating surplus, not included. Government final consumption expenditure, government final consumption expenditure, which is also a part of GDP at MP under expenditure method. Next is net fixed capital formation. अब net fixed capital formation आपको given है, जो other items given है वो हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि वो directly नहीं given है, but can be used to find out one of the component, right? So another item is net fixed capital formation, right, which is 1700. Next है आपका mixed income, कोई component नहीं under expenditure method. Change in stock required होता था, right? Again I'm writing here change in stock, which is 500. ठीक है? नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें चाहिए होते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन बट वो हमें कब चाहिए होता है? व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. स्टिल वी विल गोना राइट ओवर हियर सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको गिवन है. कितने गिवन है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस? 300, राइट? नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कितना आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी आपको गिवन है. which is 600, right? Subsidies
100. All the given amount has been given in the rupee in crore. Import of goods and services, एक एक्सपोर्ट गिवन है हमें और एक हमें इंपोर्ट्स भी गिवन है. Import of goods and services which is equal to 800. Right? Consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital क्या होता था आपका? Consumption of fixed capital क्या होता था बेटा? Another name of depreciation. So which is 1100. And the next is factor income from abroad. Factor income from abroad given है आपको. From abroad कितना है आपका? It's 800. And again factor income to abroad. तो बेटा टू अब्रॉड आपको कितना गिवन है? 700. राइट? यही आपको कंपोनेंट्स गिवन है अंडर किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में. राइट? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे. गवर्नमेंट फाइनल होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा आपका? नेट एक्सपोर्ट्स होता है, और क्या होता है? और कौन सा कंपोनेंट होता है आपका? ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन. राइट? अब ये कैसे कैलकुलेट होंगे हम देखेंगे. क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गिवन है? यस गिवन है. कितना अमाउंट गिवन है आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का? 7000. राइट? क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है आपको? यस इट्स गिवन. कितना अमाउंट है? 4200. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आपको गिवन है बेटा? नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन नहीं है, बट आपको ये जरूर बताया है एक्सपोर्ट्स गिवन है और इंपोर्ट्स गिवन है. तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता था बेटा? नेट एक्सपोर्ट्स आपका क्या होता था? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट्स भी गिवन है आपको, विच इज ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 600 माइनस इंपोर्ट आपको कितना गिवन है? 800. राइट? नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन नहीं है, बट आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों गिवन है. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स. राइट? अब नेक्स्ट आपका क्या पैटर्न है? आपका ग्रॉस फिक्स फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन. अब ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन है, बट आपको मैंने बताया था ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या था. आई एम राइटिंग हियर अगेन, देन वी गोना लर्न इट. ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता था आपका? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. राइट? तो ग्रॉस फिक्स तो है नहीं हमारे पास, नेट फिक्स जरूर है. ग्रॉस फिक्स्ड नहीं है हमारे पास, बट नेट फिक्स जरूर है हमारे पास. बट नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो आप क्या करते हो? नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो आप क्या करते हो? किसका यूज होता है? डेप्रिसिएशन का. तो जब नेट से अगर ग्रॉस पे आपको जाना है तो डेप्रिसिएशन का यूज होता है. नेट से गिवन है, ग्रॉस हमें फाइंड करना है, तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? ऐड करते हैं. राइट? डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं? ऐड करते हैं. क्या डेप्रिसिएशन आपको गिवन है? यस इट इज गिवन बाय अनदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 1700 प्लस 1100. राइट? नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. राइट? सो नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक आपको कितना गिवन है? 500. तो आपका
ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? $3,300, right? I'm again repeating. Gross final consumption expenditure का फॉर्मूला होता है gross fixed capital formation plus change in stock. But gross fixed आपको given नहीं है, आपको net fixed given है. तो net fixed से जब आप gross पे जाते हो, then you have to add depreciation. तो I've just added 1700 में depreciation. You will get gross fixed capital formation. Add change in stock, which is 500, and after adding these two, हमें क्या मिला? Gross final consumption expenditure, right? It's 1300. ऐड कर दें इन कंपोनेंट्स को, ऐड कर दें. -200 plus 3300. Next is 11 minus, which is equivalent to this. करो. But here भी हमने क्या फाइंड करा है? सिर्फ आपका GDP at LP. Now what we have to calculate it. अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? I think everything is visible to you. Just wait. So next हमें क्या कैलकुलेट करना है आपका? NNP at FC. फॉर्मूला क्या होता है? One aggregate has been given, which is GDP at NP. So moving from gross to net, हम क्या करते हैं? Minus depreciation, domestic to national, add net factor income from abroad, market price to factor cost minus net indirect taxes, right? So in this question हमारे पास क्या क्या है? GDP at NP हमने अभी कैलकुलेट करा, which is this one. Depreciation हमें given है. Net factor income from abroad हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है बेटा. Net factor income from abroad हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट एक आपको दो अलग कंपोनेंट्स गिवन है. वो क्या गिवन है आपको? एक तो आपको गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम जो अब्रॉड से आई है, वो इनकम जो अब्रॉड से आई है, और वो इनकम जो अब्रॉड गई है. तो नेट इनकम कितनी है अर्न करी आपने अब्रॉड से? दो कंपोनेंट्स हैज बीन गिवन. फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आई है फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो अब्रॉड गई है. तो दो कंपोनेंट हैज बीन गिवन. तो नेट कितना आपने अर्न किया, तो वो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विच इज 800 माइनस 700. Is that clear to everyone? Okay. The next is net indirect taxes. Again, net indirect taxes आपको given नहीं है. Net indirect taxes नहीं given, but आपको indirect taxes और subsidies given है. क्या given है? Indirect taxes और subsidies. तो वही हम क्या होता है net indirect taxes का फॉर्मूला? Indirect taxes minus subsidies, which is 100. Right? So in this question we have used 2 or 3 new words, new terms. Net factor income from abroad आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो वो क्या होता है? Subtract net factor
income to abroad from factor income from abroad, right? So 200, which is equivalent to minus 100, 100 crores. So this is the final answer. तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायरेक्टली कंपोनेंट्स में गिवन हो सकता है कि आपको डायरेक्टली कंपोनेंट्स ना गिवन हो, अदर नेम्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दीज 4 कंपोनेंट्स. विद द हेल्प ऑफ दीज 4 आप जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हो, और अगर आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला आपका इजीली बन जाता है बाय हैविंग वन एग्रीगेट. तो जब आपका दूसरा एग्रीगेट है, ये आपका फॉर्मूला बना, देन यू जस्ट नीड टू पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला. एंड द सेकेंड है, इसमें आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखा है, डायरेक्टली गिवन नहीं है. सो देयर हैज बीन गिवन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो विच इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सेकेंड थिंग आपने इसमें क्या देखा है, आपको ग्रॉस चाहिए होता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, बट यू हैविंग नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसके लिए यू नीड टू कन्वर्ट दिस नेट इनटू ग्रॉस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? I am posting 2 more questions, or I will let you know which question you have to do it in your notebook. You have to do it. Question number 63 and question number 64. तो आपका होमवर्क क्या है? I'm just writing the homework. 63 numerical and 64 you have to do it in your register. Homework. Question number 63 and 64 संदीप गर्गी आपको करना है by expenditure method only, right? So in next class I'm gonna tell you another example. Along with that we're gonna start with another pattern, which is value method, right? Thank you.